Good morning students, today is 14th May and this is maths lecture for class 12 students. This is lecture number 32 and today we will conclude discussion on number of mapping and we will solve some questions of miscellaneous exercise, relations and functions. So in the last lecture we have discussed regarding number of onto mapping. Now we will conclude it with discussion on number of into mapping. So number of into mapping. So number of into mapping is number of function without any condition imposed okay, minus number of onto mapping. So number of function without any condition imposed is r power n. As we know, number of function without any condition imposed is r power n minus number of onto mapping. So we can write here for r greater than n, for r equals to n, and for r less than n. So as we know, for r greater than n, number of onto mapping is 0, so you will write 0 here, r power n minus 0. For r equals to n, number of into mapping is number of function without any condition imposed, that is r power n, minus number of onto mapping. So for r equals to n, onto mapping कितना होता है, n फैक्टोरियल, यहाँ लिख दो n फैक्टोरियल. सिमिलरली फॉर r लेस देन n, तो r पावर n से क्या माइनस करोगे आप, तो नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग फॉर r लेस देन n क्या होता है फॉर्मूला, r पावर n माइनस rc1 इंटू r माइनस 1 पावर n, ओके, प्लस rc2 इंटू r माइनस 2 पावर n माइनस एंड सो ऑन, ये माइनस कर देंगे. सो दिस इज आवर नंबर ऑफ इनटू मैपिंग. So students, in this way we have discussed regarding number of mapping, and in number of mapping you have few categories like number of function without any condition imposed, which is r power n, number of constant function, which is r. Then we have discussed number of one to one mapping, and for number of one to one mapping, if r is greater than n, then your formula is rcn into n factorial, and when r equals to n, then your formula is n factorial, and for r less than n, number of one to one mapping is not possible, that is 0. Then we have discussed number of many to one mapping, which is number of function without any condition imposed minus number of one to one mapping, we can find easily. तो तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ वन टू वन मैपिंग याद रखना होता है. नंबर ऑफ मेनी टू वन मैपिंग ऑटोमेटिक आप r पावर n से माइनस कर दोगे वन टू वन मैपिंग के सभी केसेस को. फिर हम लोगों ने पढ़ा नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग. तो नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग आपने पढ़ा क्या, r ग्रेटर देन n के लिए 0, r इक्वल्स टू n पर n फैक्टोरियल, r लेस देन n पर ये फार्मूला है, यहाँ पर लिखा हुआ है. और लास्ट में हमने पढ़ा नंबर ऑफ इनटू मैपिंग, जो इस तरीके से. और आपने एक पढ़ा नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन विच इज इक्वल्स टू r. एंड इन ऑल दिस डिस्कशन वी हैव, आवर डिस्कशन इज related to r and n. So you must notice what is r and n here. So r is number of elements in codomain set and n is number of elements in domain set. So finally we have finished discussion on number of mapping. Okay, so now, so before starting discussion on miscellaneous exercise of relation and function, I will discuss one concept here. See, suppose we have a function a to b and we have a function g b to a. Okay, here a is a set with entries 1 to 3, b is a set with entries a b c. Okay, f is a to b and g is b to a, and it is given that f is equals to 1a, okay, 2b and 3c. Fine. And g is given here, a1, b2 and c3. Okay, g is a function b to a where a is this, b is this and g equals to this. So we can make arrow diagram here.
see a to b, this is your function f. In a we have entries 1 2 3, in b we have entries a b c. 1 is related to a, 2 is related to b and 3 is related to c. अगेन देखो ये a to b है और फिर ये b to a ही है, तो b तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, यहाँ पर आप एक वापस एक a बना दो और a के अंदर एंट्रीज 1 2 3 दिखाओ। और b to a कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन g है, फंक्शन g है b to a। तो ये किस तरीके का फंक्शन है? यहाँ पर a रिलेटेड टू 1, b रिलेटेड टू 2 एंड c रिलेटेड टू 3, इस तरीके से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम अपने फंक्शन f को इन्वर्ट करें, f इन्वर्स करें, सबसे पहली बात तो ये चेक करना ज़रूरी है कि वेदर f इज़ इन्वर्टेबल और नॉट। अगर हम सीधे सीधे बोलें कि हम f को इन्वर्ट करने जा रहे हैं तो एक बार हमें ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वेदर f इज़ इन्वर्टेबल और नॉट। तो इन्वर्टेबल के लिए 1 1 ऑन 2 होना ज़रूरी है। तो आप इसके एरो डायग्राम में देखो 1 1 है क्या? ये 1 हैज़ रिलेशन विथ a, 2 has its another relation with b, 3 has its different relation. So every element of set A has different relation in set B. तो ये 1 to 1 है। और on 2 के लिए तो range is ABC and codomain is also ABC. So this F is 1 1 on 2, 1 1 on 2 है, तो ये इन्वर्टेबल है। अगर आप इसको इन्वर्ट करते हो यहाँ पर तो ये 1 कॉमा ए होता है a कॉमा 1, 2 कॉमा b होता है b कॉमा 2 और 3 कॉमा सी होता है c कॉमा 3। जब हम लोगों ने इस तरीके से इन्वर्ट किया तो आप देखो ये क्या प्रोड्यूस हो गया। ये जो फंक्शन g लिखा हुआ था a कॉमा 1 b कॉमा 2 c कॉमा 3, a कॉमा 1 b कॉमा 2 c कॉमा 3 प्रोड्यूस हो गया। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि f इनवर्स इक्वल्स टू g है। क्या ये f इनवर्स इज इक्वल्स टू g है? ठीक है। अभी इसमें एक दो चीज़ हम लोग और फाइंड करेंगे। मान लिया हमें फाइंड करना है g ऑफ f फाइंड करना है। तो g ऑफ f आप क्या लिखोगे? अभी आप सिर्फ डिस्कशन सुनते जाओ, फिर इसको कंक्लूड करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स। ओके, तो g ऑफ f देखो, g ऑफ fx लिखते हैं इसको। अब आप ये x क्या है? इनपुट ऑफ f, तो f की इनपुट क्या है? 1 2 3, 1 बाई 1 पुट करते हैं। f ऑफ 1 तो हमने पुट किया 1, तो f ऑफ 1 इज a एंड व्हाट इज g ऑफ a? g ऑफ a कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आप एक बात यहाँ पर नोटिस करो कि हमने इनपुट 1 पुट किया तो फाइनली आउटपुट भी हमें 1 ही दिख रहा है। तो अगर आप कोई सा भी इनपुट पुट करते हो और आउटपुट वही निकल के आ जाता है जो हमने इनपुट पुट किया है, तो उस केस को बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल फंक्शन। अब देखो इसमें हम लोग फिर इनपुट 2 लेते हैं। अगर ये आइडेंटिकल होगा, g ऑफ f आइडेंटिकल होगा, g ऑफ f फाइंड कर रहे हैं, अगर g ऑफ f आइडेंटिकल होगा, हमने इनपुट 2 लिया है तो इसका आउटपुट भी 2 ही आ जाना चाहिए, तो इसको हम लोग आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे। तो देखो f ऑफ 2 कितना है? b है, तो g ऑफ b कितना बना? 2। बात समझ में आ रही है? हमने इनपुट 2 लिया तो आउटपुट भी 2 आ गया है। आइडेंटिकल नेचर, आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे इसको, g ऑफ f को। अभी फिर हम लोगों ने g ऑफ f3 लिया, g ऑफ f3 दैट इज f ऑफ 3 क्या है? c है, तो f ऑफ 3 की जगह पर c लिखो और g ऑफ c 3 है। देखो फिर से हमने इनपुट 3 लिया तो आउटपुट कितना आ गया? 3। इसका मतलब है वी कैन राइट हेयर कि g ऑफ f इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन कौन से सेट पर? जिस सेट के अंदर 1 2 3 है। तो सेट किस सेट के अंदर 1 2 3 है? f हमारा a to b था और सेट a के अंदर 1 2 3 है, तो इसको लिखा जाता है g ऑफ f इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a। यहाँ पर नीचे में आप लिख देंगे। इसका मतलब है सेट a के अंदर की कोई भी एंट्रीज आप पुट करोगे आउटपुट वही आ जाएगा। सेट a से हमने एंट्री लिया 1, आउटपुट आ गया 1, एंट्री ली 2, आउटपुट आ गई 2, और हमने वी हैव कंसिडर्ड इनपुट 3, देन वी आर गेटिंग आउटपुट 3 है। तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। तो g ऑफ f इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। अब हम लोग एक बार f ऑफ g फाइंड करके देखें क्या आता है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर इस स्पेस पर f ऑफ g फाइंड करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हमें अभी f ऑफ g फाइंड करना है। f ऑफ g, तो
देखो एफ ऑफ जी अगर आप फाइंड करते हो, एफ ऑफ जी, इसको क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो अब इनपुट किसका पुट होगा, फंक्शन जी का, जी ऑफ एक्स है, तो एक्स किसका इनपुट है, जी का है, तो जी पर इनपुट देखो क्या है, जी फंक्शन के लिए इनपुट ए बी एंड सी है, 1 by 1 आप रखो। तो एफ ऑफ जी ऑफ ए, तो व्हाट विल गेट, जी ऑफ ए इज 1, तो जी ऑफ ए की जगह 1 रखो, एंड एफ ऑफ 1 इज ए, एफ ऑफ 1 इज ए। फिर तुम्हें यहाँ पर एक बात वी कैन नोटिस हेयर दैट व्हेन we have considered input A, then output is also A. So again we will put f of g of b, then what is g of b here, 2, तो f of 2, and what is f of 2, f of 2 is b, ये x है तो ये fx है, ठीक है, ये x है तो ये gx है, तो ये 2 है तो f of 2 कितना है, b है। तो फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि if we have considered input b, then we are getting output b here. Again we will write f of g of c, so this is, what is g of c here, 3, so f of 3 is c here, so we have considered input c and we are getting output c. Okay, that means f of g is also identical nature, this is also identical function, so we can write this is identical function, but on which set, जिसकी एलिमेंट्स a b and c है, तो एलिमेंट्स a b c की सेट की है, b की है, तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b, f of g is identity function on b. So in this discussion what we have seen, we have considered two sets f and g, and we have seen that if you will consider two sets in this way, then f inverse equals to g, as well as when f inverse equals to g, g of f is identity function on a and f of g is identity function on b, then f inverse equals to g. So we can conclude this, इसको आप conclude कर सकते हो इस तरीके से कि अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन f है a to b, f है a to b, और कोई फंक्शन है g b to a, एंड g of f, अंदर कौन है f, तो इनपुट f का चलेगा, एंड g of f इज आइडेंटिटी, f का इनपुट क्या है a, तो g of f इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a, f of g, अभी अंदर कौन है फंक्शन g, तो इनपुट किसका चलेगा, g का इनपुट क्या है b, एंड f of g इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b. अगर वी हैव फंक्शन f a to b एंड फंक्शन g b to a, and these two condition exist, g of f is identity function on a and f of g is identity function on b, then g equals to inverse of f, then g is inverse of f inverse. इसको आप याद रखेंगे एज ए फार्मूला, एज ए रिजल्ट, कई बार इसको क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है, जो स्टूडेंट वहाँ पर घबरा जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उससे कैसे हम लोग कंक्लूड करें, तो इसका कंक्लूजन है g इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ f इक्वल्स टू f इन्वर्स, राइट। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज पर सॉल्व करते हैं। See, this is miscellaneous exercise, the relation and function, and first question here, f is r to r, be defined as f of x is 10x plus 7, so find the function g r to r such that g of f is f of g is identity function on r. क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है f r to r है और g भी r to r, g is also r to r, okay, and f of x is given here as 10x plus 7, ओके, और तुम्हें दिया हुआ है g of f is f of g equals to ir, इसका मतलब समझते हो आप, g of f is ir and f of g is ir। तो अभी जो हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देख रहे थे तो उसमें अलग अलग नाम लिखा हुआ था, g of f is आइडेंटिकल फंक्शन ऑन a and f of g is आइडेंटिकल फंक्शन ऑन b, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि g of f में इनपुट कौन है, तो f का इनपुट आएगा, अंदर कौन है f, इनपुट f का आएगा, तो आप देखो यहाँ पर f की इनपुट क्या है, r दिया हुआ है, रियल नंबर, इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर दिया हुआ है। तुम समझो अगर f a to b होता तो आप क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a, बट a की जगह रियल नंबर है इसलिए लिखा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r। सिमिलरली f ऑफ g, अंदर कौन है g, इनपुट किसका होगा, g का, तो g का इनपुट क्या लिखा है, r, तो हमें तो बस देखना है कि इनपुट सेट पर क्या लिखा है, इसीलिए इसको लिखा है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r। अगर ऐसा होता है कि g of f and f of g both are identity function,
देन व्हाट इज जी? जी इज एफ इनवर्स, इम्प्लाई जी इज एफ इनवर्स। और इस क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड फंक्शन जी, हमें जी फाइंड करना है सच दैट ये कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है। तो मतलब तुम्हें सीधे सीधे कह रहा है कि अगर ये कंडीशन है, यू नो एफ एक्स, देन कैन यू फाइंड जी? यस, जी इज एफ इनवर्स। तो जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स, मतलब हमें सीधे सीधे इसका एफ इनवर्स बताना है। तो देखो नाउ एफ ऑफ एक्स इज 10x प्लस 7, सो y equals to 10x plus 7. So we will express oppositely. 10x is y minus 7. So what is x? y minus 7 upon 10. और हमने f of x को y लिखते हैं, तो x क्या होगा? f inverse of y, इसको उधर भेजोगे तो दिस इज f inverse of y is y minus 7 upon 10. कितना आ गया? y minus 7 upon 10. इसी बात को फिर हम लोग, ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ y माइनस 7 अपॉन 10 है। यहाँ से हम लोग g इक्वल्स टू एफ इनवर्स इज y माइनस 7 अपॉन 10 ऐसे लिख सकते हैं। और कई बार इनपुट को y को चेंज करके आंसर्स में x लिख दिया जाता है दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तो इनपुट है, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में हम कोई सा भी वेरिएबल यहाँ पर शो करके इसको ऐसे दिखा सकते हैं और आंसर्स ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कई अथर्स आंसर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कई अथर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवे, सो दिस इज योर आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।